Hello guys, welcome to my YouTube channel. I am Dr. Shivani Upadhyay, a dental surgeon. I have done my BDS from Uttaranchal Dental College, Dehradun and internship from Shubharti Dental College, Meerut. First of all, I would like to ask you guys how many of you opt BDS luck by chance. I know many of you because I am one of them. So here's my story. My grandfather was an Ayurvedic doctor. My father always wanted me to be a doctor and didn't know when his dream became my dream. I cracked UK State PMT in 2012, but due to some less marks, I did not get MBBS seat and I opted for BDS. So I would really like to give you a piece of advice that whatever you are doing, give your best shot. Nothing is less than anything. Every profession has its own beauty. My purpose behind creating this YouTube channel is I have always had a passion for teaching. By sharing my knowledge, I want to help every dental student in their academics and certain competitive dental entrance examinations. I want to bring awareness in dentistry. Hopefully, this will lead to mutual growth. Before starting our topic, let's talk about certain facts related to dentistry. Number 1. First dental college in India. Answer is R. Ahmed Dental College, Kolkata. Second, father of dentistry, इंडिया या फिर ग्रैंड ओल्ड मैन डेंटिस्ट्री तो वो थे डॉक्टर आर अहमद. नेक्स्ट इज इंडियन डेंटिस्ट एक्ट. इंडियन डेंटिस्ट एक्ट 1948 में आया था. इट इज़ एन एक्ट टू रेगुलेट द प्रोफेशन ऑफ डेंटिस्ट्री which was passed by the Indian Parliament in close association with All India Dental Association. These one-liners are important for your academics as well as certain competitive dental entrance examination. Now we will move to our main topic, that is general introduction of pedodontics. So what is exactly pedodontics or pediatric dentistry? It is the branch of dentistry dealing with the children from birth through adolescence. ये एक डेंटिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग चिल्ड्रन डेंटिशन को डील करते हैं. कौन सा एज ग्रुप अंडर पीडोडोंटिक्स आता है? दैट इज 0 to 15 years. हु इज़ द फादर ऑफ पीडोडोंटिक्स? रॉबर्ट बनन वर्ल्ड के फादर ऑफ पीडोडोंटिक्स थे. ही टोल्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइमरी डेंटिशन. इंडिया के BR वॉचर. नेक्स्ट इज फर्स्ट बुक ऑन पीडो. ये आपकी 2 लैंग्वेज में थी, लैटिन में जे हर्लक, इंग्लिश में जॉर्डन. नेक्स्ट टॉपिक इज पीडियाट्रिक ट्रीटमेंट ट्रायंगल विच वॉज गिवन बाय राइट इन 1975. हेयर द ट्रीटमेंट रिलेशनशिप इज 1:2 which means it shows relationship between dentist and child and also between parent and child. Here child act as a focus of attention and all our efforts are directed to provide better health care to child. Therefore, child is at apex. All factors are correlated to each other and reversible to each other. Now, this was later modified by McDonald in 2004, who also added society in pediatric triangle. As we all know that society also plays an important role in the development of child. Next topic is relationship between adult and dentist. डेंटिस्ट और अडल्ट के बीच में वन टेन रिलेशनशिप होता है जो हमें बेल ने दिया था. जैसे चाइल्ड में 1:2 का रिलेशनशिप था, यहाँ पर जो ट्रीटमेंट रिलेशनशिप होता है वो 1:1 का होता है. नाउ व्हाट इज डेंटल होम? डेंटल होम वाज गिवन बाय नोवैक. It is an ongoing relationship between dentist and patient, include all aspects of oral health care delivered in a comprehensive, continuously accessible, coordinated and family-centered way. Dental home एक ongoing relationship है between dentist and child, जिसमें child को सारे ही oral health care aspects deliver किए जाते हैं by a licensed पीडोडोंटिस्ट और इसमें चाइल्ड के साथ फर्स्ट अपॉइंटमेंट स्टेब्लिश्ड हो जाता है विद इन 12 months ऑफ एज.
नेक्स्ट टॉपिक इज़ नॉलाज स्टेज ऑफ टूथ डेवलपमेंट। यहाँ पर हमारी स्टेजेस होती हैं 0 से 10 तक। स्टेज 0 कहती है एब्सेंस ऑफ क्रिप्ट। क्रिप्ट एक बोनी स्पेस होती है जहाँ पर टूथ इरप्ट होता है। तो स्टेज 0 में क्रिप्ट नहीं होती है, 1 में प्रेजेंस ऑफ क्रिप्ट होती है। स्टेज 2 में इनिशियल कैल्सिफिकेशन ऑफ क्राउन होता है, क्राउन का कैल्सिफिकेशन शुरू हो जाता है। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ पर्पस। Stage 3 says 1/3 of crown complete, Stage 4 2/3 of crown complete, Stage 5 crown almost complete, Stage 6 says crown completed। और जहाँ क्राउन कंप्लीट होता है वहाँ टूथ इरप्टिव मूवमेंट शो करता है। तो स्टेज 6 एंड स्टेज 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQ पर्पस। Now, stage 7 says 1/3 of root completed, stage 8 says 2/3 of root completed, stage 9 root almost completed, stage 10 root completed. नाउ अब स्केल कैसा होता है, ये हमारे दो टाइप के स्केल होते हैं, ऑर्डिनल स्केल एंड नॉमिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल वो स्केल्स होते हैं जो एक ऑर्डर में होते हैं, नॉमिनल वो होते हैं जो अकॉर्डिंग टू नेम होते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये पूरा एक ऑर्डर में सीक्वेंस चल रही है, इसीलिए ये स्केल कैसा है, ऑर्डिनल स्केल है। एक क्वेश्चन इसमें ये आता है कि अमाउंट ऑफ टूथ स्ट्रक्चर जो हर स्टेज में फॉर्म हो रहा है, हर स्टेज में जो टूथ स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है वो सेम होता है या डिफरेंट होता है। तो ऑब्वियसली इट इज़ डिफरेंट। Now the next topic is anticipatory guidance. Treatment plan designed by a dentist which include recommendations designed to correct existing oral problems or halt their progression and to prevent anticipated future problem। मतलब ये एक ट्रीटमेंट प्लान होता है जो डिज़ाइन करता है एक डेंटिस्ट, जिसमें हमारी जितनी भी रिकमेंडेशंस होती है वो होती हैं ताकि हम जो हमारा ओरल अभी प्रॉब्लम एग्जिस्टिंग है, अभी जो करंट जो हमारी प्रॉब्लम चल रही है, हम उसको करेक्ट कर सकें या हम उसकी प्रोग्रेशन को रोक सकें और फ्यूचर में आने वाली कोई भी प्रॉब्लम को हम प्रिवेंट कर सकें। व्हाट इज़ टेरेबल 2? जब बच्चा अपनी 2 इयर्स की एज में होता है तो वो सबसे ज़्यादा अपने पेरेंट्स से अटैच्ड होता है, तो वही सबसे प्रोन एज होती है जिसमें सेपरेट एंजाइटी होने के चांसेस होते हैं, हेंस इट इज़ नोन एज टेरेबल 2। नाउ व्हाट आर द पॉइंट्स रिलेटेड टू 3 इयर्स ऑफ एज? 3 इयर्स ऑफ एज से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि 3 क्वेश्चंस। एक, वो बच्चे जो अंडर 3 इयर्स होते हैं उनमें रेडियोग्राफ लेते वक्त उनकी जो फिल्म होती है वो पेरेंट होल्ड करते हैं, मोस्ट प्रोबेबली मदर। सेकेंड, 3 इयर्स तक जो प्राइमरी डेंटेशन होता है वो कंप्लीट हो जाता है, मतलब सारे ही दांत अक्लूजन में आ जाते हैं। और थर्ड, 3 साल या उनसे कम के बच्चों में सबसे ज़्यादा कोऑपरेटिव एबिलिटी लैक करती है। आई होप आप सभी लोगों को ये कंटेंट यूज़फुल लगेगा और ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं फॉर MCQ पर्पस। नीट के एग्ज़ाम के लिए या कोई और डेंटल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए ये सारे ही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं, सो प्लीज़ इन्हें याद रखना। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एज रिलेटेड साइकोलॉजिकल ट्रेट्स। Here we will discuss about 2 ages, age 2 and age 4. Age 2 में बच्चा शो करता है अर्ली सेंटेंस फॉर्मेशन, ग्रॉस मोटर स्किल्स दिखाता है। ग्रॉस मोटर स्किल्स वो स्किल्स होते हैं जिसमें हम लोग अपनी लार्ज मसल को इन्वॉल्व करते हैं, तो जैसे सिटिंग, क्रॉलिंग। एज 2 में बेबी अटैच्ड होता है अपने पेरेंट्स से और वो इंटरेस्ट दिखाता है सेल्फ हेल्प स्किल में। सेल्फ हेल्प स्किल मतलब सेल्फ फीडिंग करने की कोशिश करेगा। एज 4 में अभी तक वो सेल्फ हेल्प स्किल्स में इंटरेस्ट दिखा रहा था, अब वो उसे इंडिपेंडेंटली शो करेगा और स्मॉल सोशल ग्रुप्स में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट कर देगा। Now our next topic is age group classification. Here we will discuss about different age groups. सबसे पहले we will be talking about newborn और neonate. न्यूबॉर्न और नियोनेट की जो एज होती है वो होती है 0 से 28 डेज तक।
सेकेंड इज़ इन्फेंट, जो इन्फेंट एज होती है वो होती है 0 to 1 year। थर्ड इज़ टॉडलर, टॉडलर की जो एज होती है वो होती है 1 to 3 years। फोर्थ प्री स्कूल एज, प्री स्कूल की जो एज होती है वो होती है 3 to 6 year। फिफ्थ स्कूल एज 6 to 12 years। देन adolescent 12 to 19 years। Next topic is normal milestone. What is normal milestone? Milestone are behavior or physical skills seen in infant and children as they grow and develop. Now what happen in 4 weeks and 1 month? 4 week और 1 month में child start smiling। 12 वीक्स में वो अर्ली हेड कंट्रोल दिखाएगा। कंप्लीट हेड कंट्रोल 6 मंथ्स में होगा। अगर MCQ में सिर्फ हेड कंट्रोल पूछा जाता है तो आंसर विल बी 6 मंथ्स। नाउ इन 16 वीक्स दो चीज़ें होंगी, चाइल्ड स्टार्ट लाफिंग एंड चाइल्ड सिट ऑन ट्रंकल सपोर्ट। नेक्स्ट 8 मंथ्स में दो चीज़ें होंगी, चाइल्ड सिट ऑन हिज ओन, ही और शी स्टार्ट क्रॉलिंग, क्रॉलिंग करेगा और सिट ऑन हिज ओन होगा। टेन टू 12 मंथ्स में अगेन दो चीज़ें होंगी, चाइल्ड स्टैंड होगा ऑन हिज ओन और वॉक करना स्टार्ट करेगा विथ सपोर्ट। तो स्टैंड ऑन हिज ओन एंड स्टार्ट वॉकिंग विथ सपोर्ट। टू 15 मंथ्स में चाइल्ड वॉक करने लगेगा विदाउट सपोर्ट। तो ये एज मोस्ट प्रोन एज होती है डेंटल इंजरी की। थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इन केस ऑफ एनी डाउट प्लीज़ कमेंट बिलो। विल बी पोस्टिंग आवर नेक्स्ट वीडियो सून। तब तक के लिए गुड बाय।